So let's begin with the discussion of QA sectional test 7. Starting with the division of top questions. Question number 1 is on the screen. So let's figure it out. Question number 1, quadratic equation. You could have skipped the question. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 2, alligation mixture. Part 1 में डाल दीजिए. You should have attempted the question. Question number 3, something from set theory, I guess. You could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 4, time speed distance. Ideally, you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 5, something from geometry and mensuration. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 6, I guess percentage से related something it's there, so you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 7, again time speed distance. You could have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 8, ratio variation 100%. You should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 9, something from number system. I guess you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. We haven't completed the topic number system. Question number 10 seems to be something like something related to number system. Again, you could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 11, time and work 100%. You should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 12, something from surds and dices or something like that. You could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 13, geometry, could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 14, I guess time and work again, but थोड़ा सा tricky रहता है. You could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 15, something from progressions. You could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. We are done with it, but still not that much confident about it. Question number 16, SICI 100%. Ideally should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 17, something from function. Skip it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 18, variation again. Ideally you should have attempted it. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 19, something from log. Could have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 20, percentage से related लग रहा है, तो you could have skipped it. You could have attempted it for now. Part 1 में डाल दीजिए. Question number 21, I guess something related to PNC maybe, so could have skipped it for now. Part 3 में डाल दीजिए. Question number 22, geometry. Part 3 में डाल दीजिए. Let's start with it. कौन सा करना है सबसे पहले? Second. Sir, 2. Anyone having a doubt? No, sir. No, sir. पक्का No, चले आगे? हाँ. Yes sir, doubt है. Have a doubt in it? देख लेते हैं. ठीक है, क्या दे रखा है? वेसल हैड 320 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. ये 320 लीटर है, मिल्क एंड वाटर है. ठीक है, द मिक्सचर हैड 40% मिल्क. ठीक है, rather than this it would be better in case if I can draw something like this. ऐसे नहीं करते हैं. ठीक है, मिल्क वाटर सॉल्यूशन 320 लीटर. द मिक्सचर हैड 40% मिल्क. 40% कितना हो गया इसका? 128. 128. हाँ. रिमेनिंग कितना बचा? 192. First, X ml of milk was added to the mixture, then Y ml of water was added to the mixture. Each time an addition is done, the ratio of milk water in the vessel is reversed. As of now, the ratio is 2:3 for milk water, right? Yes, sir. जैसे ही आपने मिल्क ऐड किया, ये रेशियो 2:3 हो जाएगा. 2:3 हो जाएगा, मतलब ये जो 192 वाला पार्ट है, ये 2 कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 1 पार्ट कितने का हो गया? 96 का. Yes, sir. और 3 पार्ट्स कितने के हो जाएंगे? जल्दी से बताओ यार. 1 कितना? सॉरी 288. हाँ है ना? हाँ सर. Yes, sir. 288. हाँ. तो ऑलरेडी हैड 128, तो 288 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 160. 160. So this is the value of x. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. सॉरी, एक मिनट ये कैलकुलेशन साइड वाली समझ नहीं. अभी बता देते हैं मैम वापस से. टोटल कितना हो रहा है, कोई बताएगा कोई? 90, 290 और 90, 480. सही है? Yes sir. हाँ सर. चलो मैम देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मिल्क वाटर का रेशियो है 2:3. हाँ या ना? हाँ जी. आपने इसमें कुछ वाटर ऐड कर, मिल्क ऐड कर दिया, और हाँ. अब मिल्क वाटर का रेशियो रिवर्स हो गया. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, आई हैव 192 into 3. अच्छा, कैंसिलिंग इट, दिस विल बी 96. ओके सर, ओके, ठीक है समझ में आ गया. इसके बाद वापस से वाटर ऐड किया और रेशियो वापस से 2:3 हो गया.
ठीक है मतलब 288 upon 192 plus y is 2 upon 3. हम्म This is 144. तो ये हो गया हम्म 432 इक्वल टू Yes, 192 प्लस y. y का वैल्यू बताएंगे, मेरे हिसाब से 240 240 आ रहा है, तो ये हम्म 240 और ऐड किया, ये y है आपका, ये ऐड नहीं किया, ये 288 हो गया, ये कितना हो गया, 432 हो गया. ठीक है टोटल कितना हो गया, जो भी हो गया सर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y? x एंड y डिफरेंस बताना है. ठीक है 80 सर क्लियर है? देयर वाज अ क्वेश्चन, हाँ जी एक आई गेस किसी ने तो ख्वाहिश ने पूछा था कि सर डिफरेंस पूछा है x एंड y का, तो डोंट यू फील लाइक इट शुड बी x minus y which is -80? अब दो चीजें याद मीन्स रखना हमेशा. They are not saying x minus y, they are saying difference between x and y, and difference between x and y minus x और x minus y दोनों हो सकता है. ओके ओके सर. दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि थीटा क्वेश्चंस कभी भी नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल नहीं, सॉरी, होल नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा. थीटा में कोई सा भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, थीटा में कोई सा भी आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, थीटा में कोई सा भी आंसर फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा. थीटा केवल होल नंबर्स का इनपुट लेता है. क्लियर है? ओके सर. Yes, Don't take me yes wrong, sir कभी भी नेगेटिव मत लिख के आना. वो -80 लिख के आई थी, she got a wrong answer. ठीक है? गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Fourth. fourth बताना है किसी को? yes sir Yes, sir. Wait, wait. Three friends ABC start simultaneously from P to Q. A rides the bike. The speed of A is 32 km per hour. Walking speed of B and C is 8 km per hour. The distance between P and Q is 140 km. First, A and B go together on the bike. A drops B on the way and goes back to pick up C, who was walking towards Q, and reach Q on the bike. After getting dropped, B walk towards Q and reach Q at the same time. अरे यार, ये कितनी बार किया हुआ है क्वेश्चन? ये डिस्टेंस कितना है? 140 किलोमीटर. yes sir यहाँ से ए निकलता है, किससे? bikes बी को साथ में लेके, कितने की हम्म स्पीड पे? 32 किलोमीटर पर आवर और उसी टाइम पे सी निकलता है 8 की स्पीड से. हम्म आफ्टर टी आवर्स ए कितना ट्रेवल कर चुका होगा? 32T. 32 टी. हम्म बी कितना ट्रेवल कर चुका होगा? 32 टी. और सी 32 कितना T ट्रेवल कर चुका होगा? 80 80. 80. हम्म किसने इसको ड्रॉप किया? ये डिस्टेंस मेरे हिसाब से बचा है 140 माइनस 32 टी. हम्म ठीक है? ड्रॉप करके बी क्या किया, ए क्या किया, रिटर्न लिया, यू टर्न. इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था 32 T का मैडम? 30 24 टी. हाँ और ये 24 टी ये चल रहा है कितने की स्पीड से? 8 की स्पीड से. वो चल रहा है 32, मतलब 1/4 के रेशियो में डिवाइड होगा. हम्म तो ये हो गया 4.8 टी, ये हो गया 19.2 टी. यहां तक कोई दिक्कत आया तो बता दो. तो नहीं ये सर आपने क्या किया डिवाइड मैम 24 टी था, यस सर स्पीड रेशियो 1/4 है, हाँ तो डिस्टेंस रेशियो भी 1/4 होगा. मतलब 4.8 सी चल रहा है ऐसा हाँ, एंड 19.2 वो ए और बी ए चल चल रहा रहा है बाइक वाला. है ओके ओके सर चलो. तीनों साथ में पहुंचे, मतलब तीनों का टाइम इक्वल है. टाइम निकालते हैं. पहले बी की बात करते हैं. बी ने 32 टी चला था टी की स्पीड से, Yes, sir. Yes, sir. प्लस 140 माइनस 32 टी चला था 8 की कितने की, सॉरी, 32 टी चला था 32 की स्पीड से. 32 की स्पीड हर से चीज में हाँ यस सर सर बोल देते हो यार, तुम क्या एकदम ही बेवकूफ हो गए. और ये चला था 8 की स्पीड से. ये टोटल 8 टाइम हो की गया, स्पीड हाँ है ना? हम्म इतनी देर में हाँ. ये चला था 32 टी आगे, फिर हम्म 19.2 टी पीछे, हम्म फिर 19.2 टी पीछे आगे, और फिर 140 माइनस 32 टी और आगे, आगे हाँ थ्रू आउट 32 की स्पीड से. 32 की स्पीड हाँ ये काट दूं? हम्म यहाँ पे Yes, sir. एलसीएम ले लेता हूँ 32. ये हो गया 32 टी प्लस 560 माइनस 128 टी इक्वल टू 19 और 19 38.4 टी
प्लस 140 अपॉन 32। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। नो सर। ये बचा 96 माइनस का 96 सीधा जाके ऐड हो गया, बताना कि कितना होगा माइनस 96 और 134.40 हो गया। हाँ हम्म। ये हो गया 420। जल्दी से टी निकाल के बताइए। एनीवन? 3.125 एग्जैक्ट आ रहा है या इसके आगे भी है कुछ? सर एग्जैक्ट। आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक। बाइक ने क्या डिस्टेंस कवर किया? जो ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही बाइक ने किया, क्योंकि ए तो थ्रू आउट बाइक पे था। हम्म। ये ए का टोटल डिस्टेंस है। हाँ है ना? यस यस सर। सर। यस सर। 140 प्लस 38.4 इंटू 3.125। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए 3.125 इंटू 38.4 कितना होता है? 260 मतलब सब कुछ मिला के मैडम आंसर तो सबको ही दिख रहा है ना? अच्छा ओ 120। पक्का? हाँ जी। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। यस सर। Shall we go ahead? यस यस सर। सर Shall I यस सर। remove this? सर मैंने बताया इसको ऑप्शन से किया था, ऑप्शन से? मतलब सर 140 तो हट गया। यार देखो, मैं इसको विदाउट पेन पेपर करने का जुगाड़ भी बता सकता हूँ, किसी को चाहिए तो। चाहिए हाँ सर, सर बता दो। चाहिए, बता दीजिए। तो हो ही ना रहा है तो यही चीज है। ये हटा दूंगे एक बार सब कुछ। हाँ हाँ। हाँ। हटा हाँ सर। हाँ हटा दो। मेहनत तो तुम हटवा रहे हो और तुमको जुगाड़ चाहिए जिंदगी। यार एक मेहनत बात करनी बताओ, पड़ता है। ए हम्म। आगे गया, पता नहीं हम्म। कितना, पीछे आया, हाँ फिर आगे गया, हाँ। तो 140 से तो ज्यादा ही चला होगा। हाँ। हाँ ए कभी भी 280 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। डबल हो जाएगा। अब और दो 160 भी नहीं चलेगा। हाँ। लॉजिकली 160 नहीं होगा, उसका रीजन समझाता हूँ कि अगर मैं इस लाइन को, ये वाला पोर्शन हटा दूं तो 140 हो गया, दिस प्लस दिस। हम्म। और आप इन सबको मिला के 160 बता दो, मतलब ये केवल 10 किलोमीटर पीछे आया था, हम्म। हाँ विच इज ये तो टेक्निकली पॉसिबल इम्पॉसिबल है। बिकॉज स्पीड रेशियो हाँ। 4:1 था। हम्म। समझ रहे हो? तो ये वैल्यू हमेशा हमेशा, अगर डी डिस्टेंस का लेंथ है ना, तो 1.5 डी से बड़ी होगी। यस सर। क्लियर है? यस सर। और यस सर। छोटी से यस छोटी भी सर। होगी, याद रखना। क्लियर है? ये सर ये टोड़ी मतलब 140 में 280 सर। 280 को क्रॉस नहीं कर सकता है ना वो बंदा। अगर यस। टोटल लेंथ 140 की है तो ए बाइक वाला बंदा 280 क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। ये क्लियर है ना? हाँ जी हाँ। सर बिल्कुल। हटा हाँ दूं? हाँ। यस सर। हाँ नेक्स्ट। 6। बताने का है किसी को? नहीं सर नो ये सर। नो सर। नो नेक्स्ट। सर। 7। 7। बताने का है किसी को? सर 6 का यस सर बता दो प्लीज। बता देते हैं। Every week, Binu pays for a movie ticket and a book out of her allowance. Last week, Binu allowance was ₹8. The cost of a movie ticket was 20% of the difference between A and cost of the book. While cost of her book was 5%, the difference between A and cost of her movie ticket. So the nearest whole percentage, the percentage of A did Binu pay for her movie ticket. चलो let's figure it out. Every week Binu pays for a movie ticket and a book out for her allowance. हर वीक वो दो खर्चा करती है, एक वो मूवी टिकट का खर्चा करती है, एक वो बुक का। मूवी टिकट ₹X की थी, बुक थी ₹Y की। यस। तो X प्लस वाई इक्वल टू
A. Yeah. The cost of a movie ticket was 20% of the difference between A and cost of book. Cost of movie ticket is 20% of difference between A A and B. minus prior. Okay. And cost of book was 5% difference of cost and movie ticket. मैडम इतना सब कुछ हो गया, अभी कर लेंगे, 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है. Yes, sir. थैंक यू सो मच. बता दो ना. हाँ. 7th Yes, sir. बताने के किसी को. सर 7th में ऐसा ही है ना कि बी की स्पीड तो वैसे भी ज्यादा है, तो वैसे ही सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए मैडम नीचे ये के. सारी बातें तो मैं क्वेश्चन रीड करने के बाद बताऊंगा ना. सर एक बार देख लीजिए. Have a doubt to पूछो. Sundarpur Yes, sir. and Pritampur are two stations. A single track runs between them. Train A leaves every day from Sundarpur at 8 a.m. and reaches Pritampur. Another train starts, B starts from Pritampur as soon as A reaches there. B reaches Sundarpur at 10 a.m. The speed of B is 4 times that of A. One day is started from Sundarpur 20 minutes late as per the schedule. In order to maintain B's right arrival at time at Sundarpur, both trains travel at an increased speed. If B doubles its speed, find the ratio of the new speed of A and B. हाँ, अब बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं. सर कि नीचे के तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे ना. बी की स्पीड वैसे भी ज्यादा होनी है, वो वैसे ही 4 टाइम्स ज्यादा है, फिर वो डबल भी कर रही है. जुगाड़ तो सही है मैडम, बैठ तो जाएगा. क्योंकि नीचे के तीनों सारे छोटे आ रहे हैं. बराबर बराबर, तो फिर किया क्यों नहीं. सर ये बाद में हुआ ना टेस्ट के. ये 5.5 मिनट तक क्या सोच रहे थे. सर आया नहीं उस टाइम. कोई एक ना, बार मतलब इन जनरल कैसे करेंगे मतलब इसको लिख पूरे के मैथड्स. लिख के बताने क्या है क्या किसी को. हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. क्या करोगे जान के. देखो, आपको यहां से यहां तक जाना है. ये सुंदरपुर है, ये प्रीतमपुर है. सबसे पहले ट्रेन ये यहां से निकली, ठीक है, 8 बजे प्रीतमपुर पहुंची. कितने बजे पता नहीं. अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम प्रीतमपुर एज सून एज ए रीचेस देयर एंड रीचेस बी एट 10 a.m. एक बात बताइए, स्पीड ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए. स्पीड का रेशियो क्या है बी का. 1-4. तो टाइम का रेशियो क्या होगा. 4:1. 4-1. टोटल टाइम कितना लगा. 5. अरे 5 नहीं, 120 मिनट. 8 बजे से 10 बजे 2 घंटा. हम्म. मतलब ए ने 96 मिनट्स लिया होगा पहुंचने का, और बी ने 24 मिनट्स लिया होगा वापस आने का. हम्म. हाँ या हाँ, ना. तो 2 घंटा इन द मतलब सेंस अपन ने ए 2 और घंटे को बी. डिवाइड कर दिया. हाँ, इन द रेशियो 4:1. सर ए और बी मतलब ए 8 बजे चला और 10 बजे तक बी पहुंच भी चुका था, तो हाँ, इसकी वजह से आप 2 तो आवर्स ए कंसिडर. 8 बजे चला और 9:36 पे पहुंच गया. डॉट 9:36 पे बी चला और 24 मिनट यानी 10 बजे यहाँ पे पहुंच. क्लियर है. यस यस सर. यस सर. क्या गोइंग है. स्पीड ऑफ बी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ ए. ये सब अपन ने यूज कर लिया. वन डे ए स्टार्टेड फ्रॉम सुंदरपुर 20 मिनट्स लेट एज पर द शेड्यूल. अच्छा, लेट्स डू वन थिंग. मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 96 किलोमीटर. हम्म. तो ए का स्पीड मेरे हिसाब से हो गया 1 किलोमीटर पर मिनट, हम्म. और बी का स्पीड मेरे हिसाब से हो गया 4 किलोमीटर पर मिनट. अब हाँ. ए ने क्या किया. ए रीचेस 20 मिनट्स लेट एज पर द शेड्यूल. ए स्टार्ट्स 20 मिनट्स लेट एज पर द शेड्यूल. मतलब 8 बजे की जगह वो रवाना हुआ 8 बज के 20. 20 मिनट. आपके पास 2 घंटे की जगह ट्रैवलिंग टाइम कितना बचा. 100 minutes. 100 minutes. In order to maintain B's right arrival at time, both trains travels at increased speed. B doubles its speed. B की स्पीड 4 किलोमीटर पर मिनट थी, अब कितनी हो जाएगी. 8 kilometer. 8 किलोमीटर. 96 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम देगा. 12. तो 100 में से 12 मिनट तो आपने बी को दिया, हम्म. तो ए को कितना दिया होगा. 88. 88. 88 मिनट. और 88 मिनट्स में उसने ट्रैवल कितना किया. 96 kilometers. तो स्पीड क्या हो गया. 96 अपॉन 88, हम्म. हाँ. विच इज 20 सॉरी 8 से कैंसिल करता हूँ. 12 अपॉन 11. हम्म. हाँ.
ये ए का इंक्रीज स्पीड है। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू स्पीड ऑफ बी एंड ए। ए का इंक्रीज स्पीड है 12/11 और बी का न्यू स्पीड है 8। 8. दिस इज 3, दिस इज 2। 3:22. 22. दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. चले आगे। हाँ Yes, sir. Shall I remove this? हाँ जी सर. Yes, sir. Next. 8. बताना है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Next. Yes, sir. 11. फिर 8 बता दो एक बार. हाँ सर 8 एक बार बता दीजिए. अरे तुम लोग वेट क्यों करते हो? एक बंदा हाँ बोलेगा, भाई सब हाँ बोल देंगे। नहीं सर वो बोला वो आवाज दब गई. कनेक्टिविटी इशू था. यार देखो, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो करने का एकदम सस्ता वाला जुगाड़ बता दो। आपने मेटल बार को 357 के रेशियो में ब्रेक किया, पहले 15 ग्राम का ले लो। हाँ. द कॉस्ट ऑफ अ बार of a precious metal varies directly as the square of weight. C equal to KW square. कोई दिक्कत है तो बता दो। नहीं. No, sir. जब 15 ग्राम का था तो कॉस्ट कितनी होगी? हाँ. जब 357 का था तो कॉस्ट कितनी होगी? 9K, 25K और 49K. ऐड करके बताओ कितना होता है? हाँ. 83. डिफरेंस बताओ कितना होता है? 142. पीछे से 142. 69. एक बार कोई डिवाइड करके बताएगा कितना आ रहा है? 490. X K. What was the difference between the initial cost of heaviest and lightest bar? ये heaviest और ये lightest bar है, 40K का डिफरेंस है। 90, 40, 96. ये 15 आपने रेशियो के हिसाब से ही लिया था ना. Yes, 3% को ऐड करके 15 आ गया, इसलिए 15 ले। ओके. क्लियर है? Yes sir. यस सर. चलें आगे। Yes, sir. Shall I remove this? Yes sir. Thank you so much. Going ahead, next question please. 11. Anyone having a doubt? No, No, sir. No, sir. Great. Next. 16. Anyone having a doubt? no, sir. No, sir. No sir. No, sir. Next. 18. Anyone having a doubt? No, sir. sir. No, sir. No, sir. Thank you so much. Next. 20. 20. Anyone having a doubt? No, Yes. sir. Yes sir. No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Hiten and Ketan run a business, and during 2021, the basic salary of Hiten turns out to be equal to 20% of the balance of profit left after his salary was paid. इस लाइन का मतलब समझाएगा मुझे? हाँ सर, मतलब प्रॉफिट में से उसको सैलरी दी, उसके बाद जो अमाउंट बचा उसका 20%. Exactly. Hiten finally received a total of 8,40,000 after splitting the remaining profit equally between the two. तो आप टोटल प्रॉफिट कितना लेंगे सर? 120. ये बहुत सही बोला, 120x लेंगे। इसमें से आपने सैलरी दिया, एक बार आप फिर से स्टार्टिंग लाइन का मतलब एक्सप्लेन कर दो. अभी बता देते हैं मैम। हुआ क्या, ये लाइन ऐसा बोल रहा है कि आपने हितेन को 20% दे दिया प्रॉफिट, है ना? आपने हितेन को बेसिक सैलरी दिया। बेसिक सैलरी कितना था? 20% ऑफ द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर हिज सैलरी वाज पेड। सो बैलेंस लेफ्ट आफ्टर हिज सैलरी वाज पेड इज 100x, तो आपने उसको 20x दिया एज सैलरी। ओके. तो टोटल प्रॉफिट हो गया 120x का, इसमें से हितेन की सैलरी गई 20x की, रिमेनिंग बची 100x. 100x, which is to be मतलब divided। बेसिक सैलरी तो वही होती है ना जो प्रॉफिट से पहले देते हैं. मैडम ऐसा होता है, यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यस सर. इसीलिए ऐसी बातें करती हैं। ओके. मैम देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना क्लियरली, बेसिक सैलरी ऑफ हितेन टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 20% ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर हिज सैलरी वाज पेड।
उसकी सैलरी पे करने के बाद जो बैलेंस बचा ना, उसका 20% आपने उसको सैलरी दिया था, तो बैलेंस बचा 100x, मतलब उसको 20x सैलरी दिया था, मतलब टोटल प्रॉफिट हुआ था 120x का। अभी क्लियर है? यस सर। 100x में से इक्वली स्प्लिट किया, 50x इसको मिला होगा, 50x इसको मिला होगा, हम्म ठीक है। एंड हाउ मच केतन रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉफिट? इफ हितेन फाइनली रिसीव्ड, हितेन को टोटल कितना मिला? 70 70 x 70x इक्वल टू 8,40,000 8,40,000, तो x इक्वल टू 1,20,000 1.2 lakhs, तो Yes. 50x इक्वल टू 6 lakhs। ये 1.2 lakhs नहीं, 12,000 होगा एक्चुअली, 6 lakhs। हाँ और ये दे रखा है रुपीज इन lakh, दैट्स व्हाई 6 इज द करेक्ट। कोई हम्म। दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं सर। Shall we go ahead? yes sir Yes, sir. Remove this. yes यस sir सर। This is question number 20. Can I have the next question, please? सर अब वो खत्म हो गया फेज 2 पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन टिक कर पाए मैंने? सर 9 1 2 3 4 5 6 9 7 8 मार्क्स है 9 जो नहीं। 9 9 9 अब बात करो, 27 नंबर तो आ ही जाने चाहिए थे तुम लोगों के, 27 तो आए नहीं किसी के। एक्सेप्शनली केसेस आर लाइक 1 और 2 बच्चों के शायद आए होंगे। क्या कर तो रहे मेरे हो तो मार्क्ड भी वही है। मैडम? मार्क करने से थोड़ी ना मार्क्स मिलते हैं, हाँ क्वेश्चन सर। करने से मार्क्स मिलते हैं मैडम। एक बात बताइए, इसमें ऐसा क्या था कि आपने 5 मिनट लगा दिया, उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ दिया? सर 6 ही आया था, बट मैं डाइसी थी तो इसलिए मैंने टिक नहीं किया। इसका तो क्या ही है। तो जब डाइसी थे तो 5 मिनट बर्बाद क्यों किया? शॉर्ट शॉर्ट करके देखते ना। यस सर। समझ रहे हो? आपका ये मार्क देख लेते हैं, 1 मिनट 11 सेकेंड, 4.5 मिनट के बाद छोड़ दिया मैडम। हम्म 4.5 मिनट लगाओ, लेकिन फिर आंसर तो निकालो। 5.25 मिनट के बाद छोड़ दिया। हम्म नीड टू वर्क अपॉन दिस। यस सर। यस, लेट्स गो अहेड विद पार्ट 2। बोलिए जल्दी से। 1 बताने का है किसी को? yes Yes, sir sir. yes What is the sir value of a such that the sum of the squares of root, sum of square of roots of the quadratic equation has least value? यार एक बात बताओ, चलो फाइन। पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस Alpha बीटा plus beta माइनस minus अल्फा बीटा। ये तो किसी को दिक्कत नहीं है। no sir No, sir. नहीं सर। Let me know the value of alpha plus beta in this case. -4 4 माइनस ए। ऐसे a minus 4, यस सर। हम्म a minus 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8a. हम्म Can you यस please सर। let me know the value of 2 alpha beta? Only 3 alpha beta. माइनस 6 minus 2a. That's going to be -6 plus 2a. Don't you feel like Huh, that? sorry, minus हाँ 6 plus 2a. It is a square minus 6a plus 10. यस सर। Huh. What is the value of a such that the sum of the squares of the root of the quadratic equation has least value? इस लाइन का मतलब बताएगा कुछ? सर इस ये फंक्शन मतलब का मिनिमा ये जो इक्वेशन है ये उसका मिनिमम निकालना है। Obviously yes. इसका लीस्ट वैल्यू मतलब इसको मिनिमाइज करने का। मिनिमाइज करने के लिए क्या करूं? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करूं। जल्दी से बोलो। 2a 2a माइनस 6 2 minus 6. इक्वल टू इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 3 आ गया आंसर। आपसे मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन नहीं बोली थी, आपसे बोली थी व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डू वी हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ए इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू देगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये अपन ऑप्शन से कर तो सकते उसे थे इक्वेशन में ऊपर नहीं पुट करना है 3 को। सॉरी सॉरी, कम थ्री अगेन। को पुट नहीं करना है क्या a स्क्वायर माइनस 6 मैम आपसे ये पूछा है कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये मिनिमा दे देगा, हम्म तो ए इक्वल टू 3 पे मिनिमम मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। डन। शैल वी गो अहेड? हाँ नेक्स्ट
Shall I remove this? Yes, sir. Yes, please going ahead next. Third. Question number 3. बताना है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लेते हैं क्या दे रखा है. Let A and B be selected from the sets S1 equal to 11 this, S2 equal to 1999 से 2000 perfectly fine. New set is created in which contains the elements from of the form A raised to the power B and have unit digit 1. How? Okay, बढ़िया. यार देखो, A को आपको लेना है इस वाले सेट से, B को आपको लेना है इस वाले सेट से, और आपको A रेज टू द पावर B बनाना है विद द कंडीशन कि उसका यूनिट डिजिट 1 है. बराबर. Yes, sir. A को 11 ले रहा हूँ, तो B को क्या ले सकता हूँ? सर सारी वैल्यूज कंसिडर कर सकते सारी हैं. वैल्यूज कंसिडर करूंगा. कितनी वैल्यूज हैं? 20. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अगर A को 13 ले रहा हूँ, तो B को क्या ले सकता हूँ? अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जहां पे साइक्लिसिटी आपको आनी चाहिए. 3 की साइकिल होती है 3971, यानी जब भी 3 की पावर जो है वो 4 का मल्टीपल होगी तो वो यूनिट डिजिट 1 देगी. यहां से लेकर हाँ. यहां तक में 4 के मल्टीपल्स कितने आ रहे हैं? 5. कौन कौन से? सर 2000, 2004, 2008, 2012, 14, 16. क्या बात कर रहे हो? 6 गिना दिया. 12, 16. 14 कहां से ला रहे हो? अच्छा 14 नहीं. सॉरी सॉरी सर मैंने देखो 5 ही बोला था आपको. मैडम, बोलना उसको जस्टिफाई करना अलग चीज होती है ना. हाँ हाँ सॉरी. हाँ 15 की बात कर रहे हैं. सर 15 इनमें तो नहीं आएगा ना. नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. हाँ. 17 में भी हर फोर्थ पावर पे 1 आता है. हम्म. कितने तो हाँ. बनेगी? इसमें भी 5. 5. 19. 9 में हर इवन पावर पे 1 मिलता है. 10. तो इसमें 10 हो गया. ओके सर. Anyone having a doubt can ask again. No, sure. Yes, sir. तो क्या बात कर रहे हो? रिया मीटिंग छोड़ चुकी है. नहीं है. मैडम डाउट नहीं है क्या? हो गई यार. हटा दूं? यस Yes, सर. sir. नेक्स्ट. 12. बताने का है किसी को? यस Yes, यस sir. Yes, सर. sir. Yes, sir. बढ़िया है, देख लेते हैं. 2 की पावर क्या लिखूं इसको? 4/10. 1/2. 4/10. ए भाई 2/5 बोला करो ना क्या यार. 2/10. हाँ मतलब वही. Yes, sir. इसको क्या बोलूं? 4/5. अगला. अच्छा 2 की पावर 3 कैसे निकालूंगा? इनको 3 पुट कर दो इधर आप. यार ये मेरे को Okay. गलत लग रहा है एक्चुअली. तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है सर क्वेश्चन ही. सर +3 बढ़ा दो फिर. क्या? अरे 2n + 1/5 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. चलो लेट मी जस्ट चेक इट आउट. कुछ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. सर इसकी वैल्यू तो 5 आ रही है और वो भी सेटिस्फाई कर रही है. इसकी वैल्यू 5 आ गई मैडम. सर इसी वाले क्वेश्चन की. यू मीन टू से n = 5? हाँ. यार कैसे आ रही है?
मेरे को तो नहीं लगता 5 वाली। एक तो इन्होंने 2 ही टर्म दिए on the basis of which we are unable to decide the third term. अपन डिसाइड ही नहीं कर सकते। 2/5, 4/5, 6/5 लिखूं या 8/5 लिखूं? तो 6/5 लग रहा है। क्यों? फिर n को 3 पुट करेंगे तो 7/5 है। 7/5 आ रहा है तो 7/10 होगा। पर अगर आप इधर n को 1 पुट कर रहे हो तो फिर 4/5 तो नहीं बन रहा है ना, 4/5 हम्म। बनना चाहिए। सर बट ये आपने स्टार्ट में 2⁻2/5 क्यों लिखा है? वो तो स्टार्ट ही 4/5 से हो रहा है ना। मैम 4/5 से तो हो रहा है लेकिन रूट 2 है ना, तो रूट को यहाँ पे लाऊंगा तो 4/10 बन जाएगा, तो 2/5 हो गया कट के। अच्छा ठीक है सर। सर ये √2 की पावर 2n + 1/5 है, तो ये 2n + 1/10 होगा ना। कर दो मैडम, वो भी कर दो, तो भी n को 1 पुट करो तो भी नहीं आता है 2/5 तो। हम्म। I guess there should be an error in this question. At least 3 टर्म्स गिवन होने चाहिए, 2 टर्म्स के बेसिस पे आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि थर्ड टर्म क्या है। किसी ने तो कल पूछा था, मैंने बताया था कि 2 टर्म्स के बेसिस पे कभी भी तीसरा टर्म डिसाइड नहीं करना। Because if it is 2, 4, how can we decide whether it's going to be an APN 6, whether it's going to be a GPN 8? सर मतलब न्यूमरेटर में तो इवन नहीं आएगा क्या? मैडम आप तीसरी वाली बता पाएंगे प्लीज? नहीं मैं 2n + 1/5 के बेसिस पे आपको पूछ रही हूँ। हाँ क्या पूछ रहे हैं आप, वापस से बोलिए। मैम वापस से बोलिए प्लीज, समझ में नहीं आया। अच्छा ओके सर, आपने बोला या तो 6 की पॉसिबिलिटी या फिर 8 की पॉसिबिलिटी है, तो दोनों केसेस में इवन नंबर है, तो मतलब कि 2n + 1/5 से तो वैसे भी कभी इवन नंबर नहीं निकलेगा ये तो मैं बता रहा हूँ, न्यूमरेटर 7 में। की पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, +2 +3 ऐसे चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा ओके ठीक है सर, जब ठीक है। जब तक आपके पास 2 वैल्यूज है ना, आप सीरीज डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट्स कम से कम 3 वैल्यूज चाहिए सीरीज डिटरमाइन करने, 2 वैल्यूज पे कभी भी डिटर्मिनेशन नहीं होता। अंडरस्टूड सर। ठीक है, शैल आई रिमूव दिस? मेरे हिसाब से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, Yes, इसको स्किप छोड़ देंगे। नेक्स्ट 14 बताने का है किसी को? यस सर। yes sir. sir. A tank has n inlet pipes numbered from 1 to n fitted to it, and all are open simultaneously. The rate at which rth pipe fill the tanks is r liters per minute. मतलब फर्स्ट पाइप फिल करता है, बोलो। फिर r लीटर। R liters per minute। Liter per minute. कैसे बेवकूफ बच्चों, क्या 8 लीटर? मैं नहीं बोल से रहा फर्स्ट हूँ फिल करता है 1 लीटर पर मिनट। 1 लीटर पर मिनट। ए भाई, आर को 1 लिया तभी तो ये फर्स्ट पाइप बना, तो 1 लीटर पर मिनट होगा ना। अच्छा ओ सेकंड पाइप फिल करता है, हाँ 2 लीटर पर मिनट। लीटर थर्ड liters पाइप फिल per करता है, 3 लीटर पर 3 मिनट। लीटर। 3 so on, liters. so on, so on. Together, all Hmm. n pipes take a certain time to fill the tank. If the rate of rth pipe had been r square liters per minute, the total time taken by the to fill the tank would have been 1/3 of the normal. अगर ऐसे r पाइप्स थे तो 1 मिनट में कितना फिल हो रहा था? तो ऐसे n into n n + पाइप्स थे, 1/2। सॉरी R+1 n n into की n टर्म, + 1 divided by 1 मिनट में इतना फिल हो रहा था, हाँ है ना। हम्म और इन्होंने कुछ सर्टेन टाइम लिया, टी टाइम, टू फिल द टैंक, ये टोटल वर्क हो गया। यस। Hmm. ये बोल रहा है कि अगर आर एच पाइप का हो जाता रेट r स्क्वायर लीटर पर मिनट, तो पहला पाइप कितना फिल करेगा, 1 दूसरा, 1 4 4 तीसरा, 4 9 9 तो आर पाइप्स कितना फिल करेंगे? n n plus into n 2 + n 1 plus 1 1 by + 6 1/6. तो टाइम लगता 1/3, बोले तो t/3, ये टोटल काम हो जाता। कोई दिक्कत है तो बोल दो, 3/3। No जल्दी No sir. sir, जल्दी। no तो sir। t से t काट दूं, n+1 से n+1 काट दूं, दिस इज 1, दिस इज 3, कोई दिक्कत? 3 3 या 9 No, = 2 n + No 1, sir। n = no sir. 1 4. 4 कोई दिक्कत? No sir। No, sir. Very basic question, you could have easily attempted it once you are done with preparations. Clear? Yes sir।
Yes, sir. Right. Shall I remove this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Going ahead, next 15. 15. बताने का है Yes, किसी sir. को? Yes, Yes, sir. sir. बताना है? बता देते Yes, हैं, sir. हाँ sir. बता देते हैं ना, बता देते हैं. If A1, A2, A3 till AN upon AN minus 10, N minus 9, and this is 1 by 8, 8 and A11 up to AN or A1 से AN minus 9 is equals to 2, where this geometric progression, what is the value of N? A1 से A11 का सम क्या होगा? A R की पावर 11 minus 1 upon R minus 1. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आखिरी के 11 टर्म्स हैं. हम्म. आखिरी टर्म होता है ए आर की पावर n माइनस 1. हाँ. तो सेकंड लास्ट टर्म होता होगा आर की पावर n माइनस 2. हम्म. थर्ड लास्ट टर्म होता होगा ये. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. 11 टर्म फ्रॉम लास्ट होता होगा ये. हाँ या ना? N minus 11. हाँ. Yes. ठीक है, तो इसको आप जीपी कंसीडर करोगे तो पहला टर्म हो गया ए आर की पावर n माइनस 11, कॉमन रेशियो Yes, आर sir. 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और ये वैल्यू दे रखा है 1/8. यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए जल्दी से. No, sir. No, sir. नहीं, sir. No, sir. ये काट दो क्या? हम्म. ये काट दो क्या? हाँ. Yes, sir. तो r की पावर n माइनस 11 को 8 लिख दूं क्या? Yes, sir. हाँ. एक इक्वेशन. आगे चलते हैं. 8n यानी ए आर की पावर 9 से चालू करके मैं जा रहा हूँ ए आर की पावर n माइनस 1 तक. हाँ. ठीक है, पहला टर्म है ए आर की पावर 9, कॉमन रेशियो है आर. नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कोई? 11. उम्मीद है तुमसे ऐसी. और कोई 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 तो बता दो. 10. अरे हाँ, कैसे ना समझ बच्चे हो तुम लोग. किसी को तो भी नहीं मतलब आता? सेकंड सीरीज की बात कर रहे हो क्या? मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ. इसमें कितने टर्म्स है? और N minus 10. गलत है. So 9. सॉरी, 9. ओनली 9. गलत है N minus 9. मैडम. ऐसे ब्लफ क्यों मार रहे हो आप? सर सब बोल रहे थे, मैंने सोचा मैं भी बोल दी. आपको बोलना चाहिए मैडम. सही है थैंक यू यार. सर. ऐसे ये basic बच्चे हो तुम. A1, A2, A3 till A9, A10, A11 till AN. मैंने इसमें से ये वाले टर्म्स हटा दिए ना, तभी तो A10 से AN तक आया. हाँ. तो N में से 9 टर्म्स हटाए ना. Yes, sir. N minus. समझ में आया? Yes, हाँ. sir. yes Yes, sir. sir. कोई दिक्कत है तो बोल देने का. नहीं, sir. डिनोमिनेटर की बात करता हूँ. फर्स्ट टर्म है A R. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? N minus 9. ये तो क्लियरली विजिबल ही है. इसमें तो बोल दो. हाँ. Yes. ये काट दूं, ये काट दूं. R की पावर 9 इक्वल टू 2. एक और बात पता चल गई. कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. No, R sir. की पावर 27 कितना होगा इस इक्वेशन से देखें तो? 8. विच 8. इज R की Eight. पावर n माइनस 11. तो n माइनस 11 कितना होगा? 27. तो n कितना होगा? 38. 38. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए. No. तो No, ये sir. एंड में क्या किया? N minus. जादू सर पसंद नहीं आया क्या मैम? जादू. सर आ गया समझ में, जादू भी आ गया. नेक्स्ट टाइम आई विल डू मैजिक. Shall I remove this? Yes, Yes, sir. sir. Going ahead, please. Yes, sir. Next one, 15th के बाद. 19. 19. Anyone having a doubt?
यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देख लेते हैं। यार ये तो पूछ लो तुम लोग। y इक्वल टू log ऑफ 7 माइनस a 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a प्लस 3। For all real values of x, then which of the following is not a possible integral value of x? जैसे a कौन सा नहीं हो सकता है? तो मतलब ऑप्शन क्या करना है? Yes, 100%. ओके फिर भी चलो। बता सर दो। ऑप्शन सॉरी, सर ऑप्शन से ट्राई किया था लेकिन बैठा नहीं। हाँ सर, कैसे हो गए? बैठा नहीं तो फिर क्या खड़ा हुआ था क्या मैडम आंसर? अरे कोशिश करते हैं मैडम, मेरे को भी क्या जादू थोड़ी आती है, देख लो। या कहने से ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। yes, sir. Yes, sir. a ग्रेटर देन a लेस देन 7 होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। सारे सही है, टिक कर दो सब। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 पुट किया तो ये 7 हो गया। हाँ हम्म, ठीक है, एक छोटी सी बात बता दो, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? कॉम्प्लेक्स रहेगा। पर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। क्या कॉम्प्लेक्स आएंगे? मतलब मतलब रूट्स, imaginary मतलब रूट roots वाला फॉर्मेट ऐसा में बोलना आएंगे। चाह रहे हो ना? अंडर रूट फॉर्मेट में, हाँ, हाँ। इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी, हाँ। अगले पे चलते हैं। उसमें भी नहीं आएंगे। अब लिखने तो दो। अच्छा सॉरी, हाँ। अभी कोई बताएगा कौन सा आंसर आना चाहिए विद अ रीजन? देखो आंसर तो विजिबल ही है, विद अ रीजन। सर फोर्थ वाला ही हुआ क्योंकि स्क्वायर माइनस 4ac के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं बैठ रहा है। सॉरी, didn't got it, can you please repeat? सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस 4ac का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली तीनों इक्वेशंस के थ्रू आपके इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, तो इसीलिए फोर्थ वाला ही आंसर होंगे। किसी को समझ में आया? सर मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू पूछा है। Exactly. अभी मैडम जवाब देंगे आप? अच्छा नहीं। ऑड वन आउट थोड़ी करा दो मैडम यहाँ। अरे सर चलो अभी जवाब दे देते हैं। यार देखो, जवाब तुम लोगों ने दे दिया था मैम, आपने जवाब दे दिया था, आपने ढंग से सोचा नहीं। आपने क्या बोला? आपने मुझे बोला कि इन तीनों केसेस में इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ये तो बोला आपने ऐसा? हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? रियल वैल्यूज रियल ऑफ वैल्यूज। आपको एक ऐसा चाहिए जो रियल वैल्यू ऑफ एक्स थी, ठीक है? और वो तीनों इमेजिनरी दे रहे हैं। तो उन तीनों को तो कंसिडर ही नहीं करने का है। हम्म। Getting it? The other way around can be, when you solve this equation, you'll get, when you'll solve this, you'll get x equal to 0, which is not permissible. Clear है? यस सर। Everyone? नहीं सर एक मिनट, x इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं, मतलब पॉसिबल क्यों नहीं है? Madam, log of 0 is not defined ना। अच्छा हाँ e-3, ठीक है सर ठीक है। सर बट ऊपर की तीनों भी तो अलाउड नहीं है वैल्यूज। मैम वो तो कंसिडर ही नहीं होगा, वो तो रियल ही नहीं दे रहा। अच्छा इस बारे ठीक में है। तो बात ही नहीं करूंगा ना मैं। हम्म। नेक्स्ट प्लीज। सर ये भी खत्म हो गया फेज टू। थर्ड सेक्शन पे आइए। फेज लिए नंबर? क्वेश्चन 5। 5। बताना है किसी को? यस सर। ज्योमेट्री मैडम? यस सर। यस सर, बताना है। ज्योमेट्री है? नहीं सर। चलो देख लेते हैं। तो देखने में तो इजी सा ही लग रहा था पर हुआ ही नहीं। हाँ सर, मैंने भी इसमें लास्ट में जाके टाइम दिया था कि ये ट्राई करता है। कैट स्टार्ट करने से पहले वो भी तो इजी सा ही लग रहा था। अरे
farmer wants to fence his rectangular field to protect his crops from animals. उसके पास एक rectangular field है, उसको वो fencing करना चाहता है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Cost of fencing is 300 per meter on one side, 150 per meter on On 3 sides. other 3 sides. If the area of rectangular field is 1350 square meter, the lowest possible cost is. कैसे करेंगे, कोई बता सकते हैं? जो 1350 के फैक्टर्स ले लेते हैं पास पास वाले। बराबर। देखो, let it be x, let it be y. हाँ या ना? यस सर। आपका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है? 300 per meter. 300 per meter and 150 Can I take it to be 150 into into 3. x plus 2y अच्छा, plus 300 into x? किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। हाँ सर। 2x plus y इसलिए लिया क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए इसीलिए। मैम, किसी भी एक साइड को 2 बार लेना पड़ेगा और एक साइड को एक बार लेना पड़ेगा। You could have taken it to be 2x plus y and last में y 300y. Hardly matters. ओके सर। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक साइड को 2 बार और एक साइड को एक बार तो 150 से मल्टीप्लाई करना है। एक साइड को जो रिमेनिंग बचा हुआ है एक साइड उसको 300 से। ओके सर। Can you put y equal to 1350 upon x in this यस equation? सर। Yes, sir. Can you get a quadratic equation after solving it? यस सर। Yes, sir. Can you minimize this? Because मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, because बहुत अच्छे लेवल पे डिफरेंशिएशन किया है तुम लोगों ने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिनिमाइज कर सकते हो? yes sir. Yes, sir. यस सर। Get the answer. ओके सर। Okay sir. Going ahead next, please. 9. बताने का है क्या किसी को? यस sir. सर। Okay, fine. Let's figure it out. A set of 6 integers has to be formed from the numbers 1 to 12 with the property that no number is a multiple of another in this set. एक सेट है जिसमें 6 नंबर डालने का है और कोई सा भी नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल नहीं होना चाहिए. हाँ Then what is the difference between the least possible and the highest possible number of values of all the least possible and highest possible value of numbers from all possible 6 integer sets? आपसे ऐसे बोला गया, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। यानी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा ये भैया। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब तो यही हो गया ना, हाईएस्ट नंबर या Yes, ma'am. लोएस्ट नंबर। यस मैम. ओके सर। ये आपका क्वेश्चन. आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो किसी का भी मल्टीपल ना हो. मतलब यू कैन नॉट टेक 2 and 4 बिकॉज 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. यस ओके सर। ये समझ में आया? यस सर। What is the difference of the least and the highest possible value of the numbers from all possible 6 integer set? इसमें जो सेट बनेगा उसमें जो 6 वैल्यूज आएगी उनकी लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस बताने का है. हाँ क्लियर? ओके सर। हाँ जी हाँ जी। देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे, कोई बता सकता है? सर ऑड नंबर से लेते हैं 3 5 हाँ 7 सर, ऑड नंबर्स ले लेते सर हैं. 3 11 5 ले सकते 7 हैं हाईएस्ट। 1 3 11 5 ले 7 9 सकते हैं. ऐसा? 9 9 नहीं नहीं लेंगे, सर 3 आएगा तो 3 9 में 5 ऐड. 7 11 सर 3 यहाँ 5. 11 ले सकते हैं ना, 11 किसी का भी नहीं है पूरे सेट में से। तो आप जो बोल रहे हैं उसको एक बार रीफ्रेम करके बोलेंगे, ये ऑड नंबर्स गलत बोल रहे हैं, थोड़ा ढंग से सोच के बोलेंगे. क्या ले सर सकते? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ले सकते हैं, ऑड नहीं ले रहे हो आप, ढंग से सोचो. 9 हाँ क्यों सर नहीं ले रहे हो? ऑड ही लेना था तो. हाँ यस सर, प्राइम नंबर्स। हाँ So you could have taken 2 3 5 2 7 3 5 7 11. you want to take 2 3 5 7 11. छठा नंबर कौन सा लेंगे मैम? सर कोई भी ले लूं, मतलब 9 नहीं। बताइए कौन सा अलाउड है? एक मिनट। 1 यस सर. नहीं 1 तो नहीं होगा.
Sorry? 1 तो सबका ही फैक्टर हो जाएगा। नहीं एग्जैक्ट कुछ नहीं सर। सर इसमें तो नहीं बैठेगा। हाँ तो आपकी वैल्यूज हटा दूं और कुछ लूं? यस सर सर। अगर इसमें से 2 हटा दे तो वैल्यूज आ जाएगी ना? लो मैडम हटा दिया, अब बताओ क्या डालूं? सर 4 और 8 और 12 डाल दो। 12 सॉरी नहीं सर, 8 डाल दो, 8। 8 डाल देता हूँ। अब बताओ। और कोई? सर 3 हटा के 9 और 12 डाल दो। 3 हटा देता हूँ। क्या डालूं? 9 एंड 12। 9 और 12 डाल दो सर, 12। सही बोल रहा है कि हाँ यस सर। समझ में आया? सर 6 7 सॉरी सर 6 to 11 भी तो सारे नंबर कंसिडर कर सकते हैं। मैम बोल रही हैं 6 7 8 9 10 11 ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगा फिर? व्हाट इज द डिफरेंस मतलब? यार हाईएस्ट पॉसिबल तो ऊपर से मैच नहीं करा ना। 11 सर एक बन जाएगा 5 6 8 7 11 5 6 8 7 और एक 9। और कोई? सर 9 12 5 6 8 7 नहीं 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 सॉरी। सर 10 12 8 सॉरी 10 12 8 7 9 और एक नहीं नहीं एक 11 आ जाएगा। 7 8 9 10 11 12। एक बात बताओ, सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू आप कौन सी ले पा रहे हो? सर 12 11 11 दोनों आ 11। फिर 12 भी तो ले पा रहे हो। फिर 12 के हाँ फैक्टर हो जाएंगे ना, फिर काउंट वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं बट मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं वो बता देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट एंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सेट्स? जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर जो आप ले पा रहे हो ना, उनका डिफरेंस आपको बताना। हाँ क्या गेटिंग इट? नहीं समझ में आया? हाँ समझ में आया। आ गया सर, है आ या गया। नहीं है? तो मतलब आए जैसे अगर मतलब मैं हाईएस्ट ये मल्टीपल सेट बना पा रहा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे कुछ और भी बता दोगे आप, बना पाऊंगा बराबर। हाँ अब ये बोल रहा है जितने भी पॉसिबल सेट्स है ना, उनमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू आप ले पा रहे हो और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप ले पा रहे हो उसका डिफरेंस बता। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 12 ले पा रहे हो, हाँ या ना? हाँ यस यस सर। सबसे लीस्ट वैल्यू किसी भी सेट में आप 1 ले पाओगे क्या? नो नहीं सर। नहीं 2 ले पाओगे क्या? नहीं नहीं। क्यों? एक बार देख लेते हैं। 2 लिया तो सारे इवन नंबर्स हट गए। हाँ ठीक है, अब बचा 3 5 7 9 11। एक्चुअली 6 ही नंबर बचे और 3 9 साथ में आ नहीं सकता।
हाँ हाँ तो 2 भी नहीं ले पाऊंगा। हाँ नो सर 3 ले पाऊंगा क्या? अब मैंने नहीं जैसे नहीं है फिर आप 3 ले 12 लिया, तो 3 ले लिया तो कौन कौन हट गया? 9 और 6 12 9 6 9 6 12 9 12, ये 3 नंबर हट गए, है ना? हाँ हाँ 2 ये हट गए, 1 2 3 4 5 हट गए, ये 6। अब क्या क्या बचा 3 के साथ? 4 5 7 8। 4 8 हट गया, 4 8 कभी भी साथ में नहीं आएगा 5 10 हट गया। और 5 10 साथ में नहीं आएगा। तो अगर आपने 10 लिया तो 5 हटा दो, 8 लिया तो 4 हटा दो, और अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हट चुके, तो आप 6 नंबर सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, मतलब 3 भी कभी नहीं आएगा। हाँ क्लियर है? 4 ले सकता हूँ क्या सबसे छोटा नंबर? 4 लिया तो आगे से क्या क्या हट गया? 5 बचा है, 6 बचा है, 8 7 12 8 बचा है, होगा 9 बचा है, 12 10 होगा बचा है, 11 बचा है, ये बचे। हाँ और 5 लिया तो 10 हट गया, 5 और 5 10 बता देता हूँ। 4 6 7 9 10 हाँ 11 ले सकता हूँ क्या? यस सर तो जो सबसे छोटा वैल्यू मैं ले पा रहा हूँ ऐसा कुछ वो है 4 4, तो डिफरेंस है 8। क्लियर है? यस सर यस सर। कैन बी गो यस अहेड। सर सर एक मिनट यस सेट तो बनाई हूँ। मैडम बन तो गया। 4 6 7 9 10 11। नहीं तो 12 है। सॉरी आई मीन पॉसिबल केसेस मैम, में बनाना 12 को था वो डालना नहीं है, समझिए बात। ये बोल रहा है जितने भी पॉसिबल सेट्स है ना, एक हाँ सेट का हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है। अगर एक सेट का पूछा होता तो 12 को लेना मेंटेन होता। ओके सर अंडरस्टूड सर। जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी ले सकता हूँ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है सर। चलो गोइंग अहेड, shall I remove this? यस सर यस सर। सर Yes, this was question number 9. Next 9 10 बताने का है किसी को? यस सर यस सर। Ice cream vendor sells ice cream for ₹5 and ₹7. Vendor sold A 5 rupee ice cream and B 7 rupee ice cream costing ₹720 420 on a Sunday evening. A and B are natural numbers. अरे यार क्या बकवास पूछते हो तुम लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो सर नो सर। पक्का सही है? सर 420 तो कॉस्ट प्राइस है ना, 5 है और 7 भी तो सेलिंग प्राइस है। यार मैंने यहाँ पे सेलिंग और तो कॉस्ट अगर इसमें ए और बी के पेयर्स ही तो निकालने हैं 35 का डिफरेंस रख के। बराबर। मैडम मोटिव हाँ 420 पे फोकस मत करिए। बात ऐसी है कि ऑब्वियसली जब कॉस्ट की कुछ बात नहीं कर रहा हूँ तो हाँ ये टोटल सेलिंग के इक्वल होगा। अच्छा ओके एक सर। छोटी सी बात बता दीजिए, मैंने बताया था इनका सोल्यूशन कैसे निकालता है जब दो वेरिएबल और एक इक्वेशन। कौन बताया था? हिट हाँ एंड ट्रायल से पहला हिट एंड बताओ ट्रायल फिर हिट एक एंड ट्रायल क्या रखूं? ए बी को इक्वल टू 0। बी को 0 बी रख दूं को क्या? 0 रख लो। यस सर। तो ए कितना हो हाँ गया? 84 और ए अब कितने पे वेरी करेगा? 7। 7। 7 ए को 7 से 7 रिड्यूस करते रहो। हाँ और उसको इंक्रीज और करना है बी बी को 5 से। 5 से इंक्रीज जाते होगा। जाते लास्ट में 7 आएगा, 7 के बाद 0 आ जाएगा। हाँ सर यस सर। ये 0 5 5 10 और लास्ट में जाते जाते सर सेम 55 जीरो फिर 60। हाँ 60 पे आएगा 60 पे। कैन आई कंसिडर दिस केस? नो सर क्यों? सर नेचुरल नंबर बोला है। Zero is not a natural Can I number. consider this case? नो नो सर I have to go from 7 to 77. How many numbers are there? 11 11. 11 तो दिक्कत है तो बोल दीजिए। Anyone? नो सर अरे क्या नो doubt? No, sir. बहुत बेसिक क्वेश्चन, दिल से ही टूट जाता है यार ये सब करा। नेक्स्ट 13 बताने का है किसी को?
नो सर। नो No, सर। sir. नो सर। नेक्स्ट 17। बताने का है किसी को? Yes, sir. ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मैम एक छोटा सा काम कर देंगे क्या? हाँ. एक्स को 1 पुट कर दी, 1/1023, सॉरी नॉट 1/1023। 1/2023. मैडम 20 पुट कीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए प्लीज। 4 की पावर 1/2023। सर 2 की पावर 2/2023 +2, मतलब अगर हाँ। किसी को दिक्कत है तो बोल दो। नहीं. नो सर। पक्का? जी। यस सर। कोई ये निकाल के बता सकता है मेरे को? 4044/2023 आ जाएगा सर। हाँ, 40 2 पावर 4044/2023 हम्म +2। और कोई अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके बता सकता है मेरे को? ये थोड़ा क्या थोड़ा करके देखो ना यार। सर मैं क्यों इनको करवाता हूँ ऐड. इसका लॉजिक समझिए। इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पे मैंने बोला था, शायद प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और फंक्शन ऐसा कुछ था। आपसे बोला गया था f1/2, जितना मेरे को याद है, यस f1/4 सर। हाँ. हाँ सर हाँ। हाँ, हाँ, हाँ. f3/4 प्लस f1/8 प्लस f7/8, 1/16 भी था. ऐसा एक बिल्कुल क्वेश्चन सर था, बिल्कुल आपको हाँ। याद हो? हाँ सर याद है? हाँ। यस सर। द थिंग वाज कि इफ यू वर ऑब्जर्विंग f1/8 और 7/8 को ऐड करके 1 आ रहा था। हाँ इन दोनों को ऐड करके भी 1 ही आया। यस सर। इन दोनों को ऐड करके भी 1 ही आया। तो ये जो 2022 वैल्यूज हैं, कितने पेयर बनाएंगी? 1011। सबका वैल्यू 1 है। याद आ गया? पर सर इनको पर सर इनको ऐड करके 1 आएगा, ये कैसे पता चलेगा? जादू से। जादू एक पसंद बार नहीं है करके मैडम दिखाओ आपको? ना जादू से वो। सर मेरे को तो नहीं आता ये जादू, आपको आता है तो आप बता दो. अरे मैडम, मैं इस जादू की बात नहीं कर रहा, मैं वो कोई मिल गया वाले जादू की बात कर रहा होता हूँ बार बार। पसंद नहीं है क्या आपको? बढ़िया सा था मैडम, नीले रंग का। अरे सर. चलो, कर लेते हैं।
समझ में आ गया मैडम? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और किसी को आया? नो सर। किसी को तो आया होगा। हाँ या ना? हाँ सर, आपने रेसिप्रोकल ऐड किया नहीं? नहीं, नहीं नहीं सॉरी, 1 माइनस करके, हाँ तो आपने वही तो किया जो पहले बोले थे। मतलब मैंने जो बोला था मैंने उस चीज को प्रूव किया है। ये समझ में आया आपको? हाँ मतलब, हाँ जी। आगे और कोई? चलो भाई, जिनको नहीं समझ में आया समझ लो प्लीज। देखो, अगर मैं x इक्वल टू 1/2023 ले रहा हूं, तो ये जो 2022/2023 है, इसको मैं 1 माइनस 1/2023 लिख सकता हूं क्या? यस हाँ। सर। यस सर। इसको 1 माइनस x लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर। सर। यहां तक किसी को डाउट है तो बोल देने का। नो नो। सर। हाँ तो सर। ये अगर आपका fx है तो ये आपका f1 माइनस x हो गया, हाँ या ना? हाँ। हाँ। हाँ सर। चलो बढ़िया बात है। fx की वैल्यू निकाली ये, हाँ। f1 माइनस x की वैल्यू निकाली ये। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। नो सर। नहीं सर। ये 4 की पावर 1 माइनस एक्स को 4/4 की पावर x लिख दिया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। फोर की पावर 1 माइनस एक्स को 4/4 की पावर x लिख दिया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। नो सर। नहीं। नो सर। नहीं सर। आई हैव टेकन एलसीएम, 4 की पावर x न्यूमरेटर में चल जाएगा ये वाला, हम्म। हाँ। हाँ। और ये नीचे बचेगा 4 प्लस 2/4 की पावर x, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। 2 कॉमन लो, हाँ क्या सर। बचेगा? 2 प्लस 4 की पावर x, हाँ या ना? यस हाँ। सर। ये दिया 2 कॉमन, 2/4 हाँ। प्लस 2 प्लस 4 की पावर x। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लूंगा तो 2/4 पावर x प्लस 2 बचेगा। हाँ। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा, हम्म। प्लस 2/4 पावर x, ये वाला एज इट इज आ जाएगा। यस हाँ। सर। इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 2 प्लस 4 पावर x, और नीचे भी 2/2 प्लस 4 पावर x का कट उठा के बना जाएगा। हाँ हाँ। सर। तो आई हैव प्रूव दिस प्लस दिस टू बी इक्वल टू 1। क्लियर है? यस। यस फिर यस मिल सर। जाएगी argument for all the other values। चलेगा? हाँ चलेगा। सर। Shall I remove this? यस। यस। यस सर। Going ahead. Next, 21। किसी को बताने का है? हाँ सर, मतलब हाँ पीएनसी सर। तो रहने दो। देख लेते हैं। For an inter-gully to cricket tournament, a team of 6 players need to be formed. The team contains 2 batsmen, 3 bowlers, and 1 wicket keeper. There are 23 batsmen, 26 bowlers, and 9 wicket keepers. If the maximum number of teams is formed, find out the number of players that will not be part of any of the team. Purely PNC guys. बताने का है? नो सर। तो वैसे नॉर्मली भी हो रहा है शायद। तो वही काफी तो मैडम, मैं तो देख रहा था इन लोगों के दिमाग है, कोई तो PNC का काफी क्वेश्चन नहीं है ये। बता दो। हाँ सर, नॉर्मली हो रहा है ये। हो जाएगा नॉर्मल। ये तो सब हाँ मान गए थे कि PNC का नहीं। है। भाई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास 23 बैट्समैन है, हाँ। 23 बैट्समैन है, 26 बॉलर्स हैं, बोल। और 9 विकेट कीपर्स। आपको 6 प्लेयर की टीम बनानी है, बराबर? यस सर। हर टीम में 2 बैट्समैन, 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर देना। हम्म। अगर विकेट कीपर के हिसाब से देखें तो मैं 9 टीम बना सकता हूँ, सब में एक एक चल जाएगा। हाँ। लेकिन Yes. हर टीम में 3 बॉलर देना है, तो 27 बॉलर चाहिए थे 9 टीम बनाने के लिए। तो हाँ। नहीं बैठे। हाँ। मैं 9 तो नहीं बना पाऊंगा। मैक्सिमम कितनी टीम बना पाऊंगा? 8। 8। 8 अगर बनेगी। 8 टीम बनाई तो इसमें से कितने बॉलर यूज हो गए? 24 24। बॉलर यूज नहीं हुए। 2। 2 2। और कितने विकेट कीपर यूज हो गए? 1। 1 8। कितने विकेट कीपर यूज एक। नहीं हुए? 1। और 1। कितने बैट्समैन यूज हो गए?
16 तो कितने नहीं हुए? 7 7 कितने प्रोग्राम्स नहीं हो पाए? 10 टोटल ओके 8 सर क्वेश्चन पढ़ा तो करो पीएनसी में पहुंचने से पहले। ओके सर ऑल्दो दिस इज समथिंग यू शुडंट हैव अटेम्प्टेड, रीजन बीइंग कि ये नंबर सिस्टम भी आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन प्लीज डोंट फॉर्म अ रॉन्ग परसेप्शन अबाउट अ क्वेश्चन जस्ट बाय लुकिंग एट इट। एटलीस्ट after the test, in between the test, during the test, you are not suggested to go for these questions, but ideally once you are done with the test, then you should go for an analysis before coming for my session. जो लोग आप लोग नहीं करते हो, मेरे सेशन में आने से पहले या अभिषेक सर के रीजनिंग सेशन में जाने से पहले एक बार एनालिसिस करके जाया करो, so that once you are appearing for the analysis being given by us, you can have a better clarity की क्या करना है क्या नहीं करना। I hope that's clear. Shall I remove this? यस सर यस सर Next, 22 बताने का है किसी को? नो सर सर अगर सर। ये इजी तो बता दो और अगर टफ है तो मत मैडम बताओ। देखो आपकी इच्छा है, टफ इजी मैं क्वेश्चन रीड के बिना नहीं बताऊंगा। आप बोलोगे बताना है मैं बता दूंगा। आपको जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे टफ हो रहा है छोड़वा देना, बोले छोड़ दो सर नहीं आगे नहीं करना। बता दो सर। बता। A vertical cell LT stands at the center of L of a square ABCD. Yeah. There is a square ABCD. इसका सेंटर है यहाँ पे, एक वर्टिकल टावर है ATB. Now this is A B C D. ये L है। यहां से एक 3D फिगर बन रहा है TB। अच्छा A T, दिस इज ATB, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। ओके फाइन। फाइंड द हाइट ऑफ टार LT, साइड 32 है। तो जस्ट लेट मी फिगर इट कुछ आउट, एक बार देख स्क्रीन लेते पे हैं। सॉरी सर आपने स्क्रीन पे कुछ बनाया है क्या, दिख नहीं रहा इसलिए। मैडम ये बॉक्स स्क्वायर दिख रहा है ABCD, हाँ बस यही है, आपने उसके एंगल सेंटर में बताया L दिख रहा है। हाँ बस अब मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। 32 32 ठीक है। ठीक है हो जाएगा मैम। देखो दो तरीके, एक तो मैं अभी समझा देता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। यस सर। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल क्लास में समझा दूंगा बिकॉज इट्स अ 3D फिगर। ओके सर। ठीक है ठीक, आई माइट बी रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द वीडियो फॉर दिस। आपके पास एक कॉपी है मैम? हाँ है। एम आई विजिबल? यस सर। मैं कहाँ दिख रहा हूँ क्या मेरे को? आप लोग को ये दिख रहा है बोर्ड? हाँ ये मैंने इसको एकदम प्लेन रख दिया, इट्स ए स्क्वायर, चलेगा? हाँ हाँ ये मैंने पेन लिया टावर और इसके एकदम सेंटर में लाके खड़ा कर दिया, हाँ चलेगा? हाँ अब एक ये वाला एंड पॉइंट है, ये वाला, हाँ एक ये वाला एंड पॉइंट है, हाँ और एक इसका टॉप है, टॉप दिस वन। हाँ ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात बताइए, यहां से जो इस हाँ पॉइंट के टॉप पे जा रहा है
और यहाँ से हाँ। जो इस पॉइंट के टॉप पे जा रहा है ये दोनों साइड तो इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर के सेंटर पे खड़ा है वो। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ इफ इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ये साइड आपका 32 का था, ये 32 था, हाँ ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट होके इस सेंटर के टॉप पे जो पॉइंट जा रहा है वो 32 का हाँ होगा। हाँ नाउ यू हैव टू कंसिडर अनदर ट्रायंगल। आपको पता है यहाँ से लेकर इस हाँ टॉप तक जो रहा है वो 32 है। हाँ जस्ट इमेजिन ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ इस पॉइंट को मैं इस हाँ पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ 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 ये 30 इसका हाइपोटेन्यूज जो बन रहा है यहाँ से हाँ लेकर इस पे ये जो ऐसा स्लांटेड सा लाइन आएगा हाँ 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 ये 32 का है, यानी हाइपोटेन्यूज 32 का है। हाँ ठीक है। दूसरी बात, ये पूरा स्क्वायर 32 का, ये 32 का था, हाँ ये भी 32, तो ये डायगोनल 32 √2 का होगा। हाँ 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 और ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, मतलब ये 16 √2 का होगा। 16 हाँ So you have a right angle triangle with hypotenuse 32 and base as 16 √2. Height भी 16 √2 आएगा. Applying Pythagoras theorem, हाँ 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 which is the correct answer. ओके थैंक यू सर। Video कौन सा? Clear है? यस सर। अभी भी नहीं समझ में आया तो कल क्लास में पूछना. ओके सर। हो गया सारा? Yes, sir, finally. Thank you so much, Mr. Agam. You helped us a lot. Thank So you, sir. fine. Sorry. कुछ नहीं. So finally, with this, we are done with the discussion of QA sectional test 7.